lecture, and before starting my next lecture, let me revise some summary of the previous lecture. In the previous lecture, we have studied some results, 2 or 3 results. One result is the following, that we studied that if we take a polynomial ring over a field with one variable and take its irreducible polynomial, then ideal generated by that polynomial will be maximal ideal, and the quotient ring obtained by that ideal will be therefore a field. And after also we studied that the behavior of irreducible polynomial in a polynomial ring over a field is the similar to the behavior of prime numbers in the integers. जिस तरह प्राइम नंबर्स जब दो नंबर्स के प्रोडक्ट को डिवाइड करे when p divides a b then p divides either a or b. Similarly, when irreducible polynomial f divides the product of two polynomials g and h, then f divides g or f divides h. तो ये कुछ बातें थी, some things जो हमने previous lecture में की थी. अब हम आगे बढ़ते हैं. Our lecture was about the construction of finite fields. हम इसमें जो टॉपिक कवर कर रहे हैं इस कोर्स का कि finite fields को किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाए, तो उस हवाले से this lecture is a continuation of the topic construction of finite fields. तो आइए शुरू करते हैं. तो इसमें ये तो प्रीवियस लेक्चर था, लेक्चर नंबर 13 की तरफ हम चलते हैं. लेक्चर नंबर 13. लेक्चर नंबर 13 में सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यू शुड रिवाइज द टॉपिक ऑफ फैक्टर रिंग और क्वोशंट रिंग फ्रॉम योर क्लास लेसन्स or from any books. It's good for the better understanding. Or these topics of quotient or rings or factor rings are already also taught in lower MSc classes or BS mathematics classes. So it's better for you. So now comes to the theorem. In this theorem, it is stated that let R be a finite ring commutative with unity, X be an indeterminate over R, and F is some non-zero polynomial in Rx. यहाँ पे f जो है वो फाइनाइट रिंग है. तो if this, then if R has cardinality m and f has degree n, then cardinality of this quotient ring is m power n. What is m? M is the cardinality of R, and what is n? N is the cardinality of n is the degree of f. So again, see, this theorem states that if R is a finite ring commutative with unity, X be an indeterminate over R, and F is some non-zero polynomial in this polynomial ring, then cardinality of this quotient ring will be m power n, where m is the cardinality of the ring R and n is the degree of F. Notice that the cardinality of the polynomial ring is always infinite because Rx में हर डिग्री की polynomial होती है, but the cardinality of this quotient ring is finite. R में बेशक फाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स क्यों ना हो, Rx में इन्फिनिट एलिमेंट्स होते हैं क्योंकि इसमें हर डिग्री की पोलिनोमियल होती है, डिग्री पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती. बट व्हेन वी मॉड आउट दिस बाय सम पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n, तो फिर इसके एलिमेंट्स की तादाद m पावर n हो जाती है. दिस थ्योरम विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ फील्ड्स विद p पावर n एलिमेंट्स. सो नाउ लेट्स कम टू द proof of this theorem. Proof: we have Rx over ideal generated by F equals to the set of all cosets of F, and you know the cosets can be written in this form G plus F, where G varies from this string. अब G जो है उसकी डिग्री जो है वो G कोई भी पोलिनोमियल हो सकती है, लेकिन G को जब आप F के साथ डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर होगा उसकी डिग्री n-1 या उससे कम होगी, और बाकी चीज़ें जो होंगी वो इसमें अब्सॉर्ब हो जाएंगी. देयरफॉर आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमें क्या मिलेगा कि इस रिंग के अंदर इस तरह के एक्सप्रेशन होंगे, इस तरह के कोसेट्स होंगे.
some expression of some polynomial of degree n minus 1 or less plus the ideal. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर f की डिग्री 6 होगी तो यहाँ पे एक्सप्रेशन डिग्री 5 तक जाएगा, अगर f की डिग्री 4 होगी तो ये 3 तक जाएगा, अगर f की डिग्री 100 होगी तो ये 99 तक जाएगा। तो इस तरह के इसमें एक्सप्रेशन होंगे। तो इसको फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक मैपिंग डिफाइन करते हैं। हम क्या करते हैं कि जो x का कोसेट है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं x बार के साथ यानी एक मैपिंग डिफाइन करते हैं जो कोसेट्स को x प्लस एफ को x बार पे मैप करें, और ये मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म होगी। आइसोमॉर्फिज्म की मदद से हमें पता चलेगा कि ये जो रिंग था कोसेट्स का वो इसके आइसोमॉर्फिक है। What is isomorphism? When two rings are isomorphic, then they have same structure. So therefore, for this ring can be simplified into this ring. लेकिन यहाँ पे अब x वेरिएबल नहीं रहेगा। x पे अब क्या कंडीशन है कि x इस पोलिनोमियल का रूट हो जाएगा। x क्योंकि अब वेरिएबल नहीं है, इसको आप किसी और सिंबल से डिनोट कर लें तो ज़्यादा बेटर है ताकि कंफ्यूजन ना हो। और ज़रूरी नहीं है कि आप सिंबल थीटा यूज़ करें, आप अल्फा बीटा गामा या टी यू कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें ये एक रिंग जो है एक सिंप्लीफाइड रिंग में चेंज हो जाएगा जो कि उसके आइसोमॉर्फिक है। आइसोमॉर्फिक दे हैव सेम स्ट्रक्चर और इसको डील करना निस्बतन आसान होगा। तो आर एक्स और एफ के एलिमेंट इस तरह के होंगे। इस थ्योरम में हमारा जो मकसद है वो क्या है, हमने इसके एलिमेंट्स को काउंट करना है कि इस रिंग में एलिमेंट्स कितने हैं। अब हमें ये तो पता चल गया कि इसके जो एलिमेंट्स हैं वो इस तरह की फॉर्म के एक्सप्रेशंस होंगे और इसमें a0 a1 until an minus 1 belongs to the ring R और R में कितने एलिमेंट्स हैं, m एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब है a0 के लिए कितनी चॉइसेस होगी, m चॉइसेस, a1 के लिए कितनी चॉइसेस हैं, m, हर एक के लिए m चॉइसेस हैं। तो we have m choices for all the values of ai for all I from 0 to n minus 1, hence this ring has cardinality m multiplied by m and so on n times. So क्योंकि यहाँ पे ये जो इनकी तादाद है ये n है, ये 0 से लेके n minus 1 तक अगर हम इनको काउंट करें तो ये n प्लेसेस हैं और हर प्लेस को फिल करने के लिए m एलिमेंट्स हैं। क्योंकि रिंग में m एलिमेंट्स हैं तो लिहाजा इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, m पावर n। तो ये थ्योरम है कि इसमें आर एक्स ओवर एफ की जो कार्डिनलिटी है वो क्या होगी, m पावर n, वेयर m इज द कार्डिनलिटी ऑफ r एंड n इज द डिग्री ऑफ f. This is for every polynomial. Yes. Now comes to the next theorem. This theorem is very helpful for the next process. Now we have a corollary of this theorem. This corollary states that for any irreducible polynomial f over a field f, number one, fx over f is a field, of course, because f is irreducible, and it contains the field f. यहाँ पे properly का word नहीं आएगा, ये by mistake लिखा गया है। Properly तब आएगा अगर f की डिग्री 1 से ज़्यादा होगी। तो ये फील्ड f के इक्वल भी आ सकता है अगर f की डिग्री 1 होगी। ये फील्ड जो है ये f को अपने अंदर कंटेन करेगा। पिछले रिजल्ट में भी देखें जैसे जो r के एलिमेंट्स हैं वो भी इसमें मौजूद हैं। अगर हम बाकी सारी टर्में ज़ीरो कर दें, सिर्फ ये कांस्टेंट टर्म रह जाएगी, तो फिर वो r के एलिमेंट भी इसमें देखे जा सकते हैं। ये उसी तरह की बात है। और दूसरी बात हमें ये पता चली कि f ये जो क्वोशिएंट रिंग बनेगा इसके एलिमेंट्स को हम सिंप्लीफाई करके इस तरह इन एक्सप्रेशंस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सम एक्सप्रेशंस इन सम लेटर थीटा, और ये हम n-1 तक जाएंगे। अब n-1 तक क्यों जाएंगे, क्योंकि f की डिग्री n है और थीटा क्या है, दिस इज इंपॉर्टेंट, थीटा इज अ रूट ऑफ दिस पोलिनोमियल स्मॉल f। और यहाँ पे आउटसाइड का क्या रिलेशन है, बिकॉज थीटा इज अ रूट आउटसाइड ऑफ f, क्योंकि थीटा अगर f के अंदर होगा तो फिर f इरेड्यूसिबल नहीं रहेगी, f रिड्यूसिबल हो जाएगी। दिस इज इंपॉर्टेंट। f क्योंकि इरेड्यूसिबल है तो थीटा जो है उसका रूट तो होगा लेकिन f के अंदर नहीं होगा, f के बाहर होगा। ठीक हो गया। अगर f इरेड्यूसिबल ना होती फिर हम कह सकते थे कुछ भी, लेकिन फॉर द मोमेंट ये श्योर है f क्योंकि इरेड्यूसिबल है, थीटा f से बाहर होगा। नंबर 3, और यहाँ पे अगर हम f की जगह प्राइम कार्डिनलिटी का फील्ड ले लें एफ पी, तो फिर एफ थीटा के जो एलिमेंट्स की तादाद होगी वो p पावर n हो जाएगी बाई प्रीवियस थ्योरम। इसमें p क्या होगी, फील्ड की कार्डिनलिटी, और n क्या होगी, f की डिग्री।
तो ये क्रॉलरी हमें बताती है कि फाइनाइट फील्ड किस तरह कंस्ट्रक्ट होंगे। अगर हमें फील्ड कंस्ट्रक्ट करना है p पावर n एलिमेंट्स के लिए, तो हमें क्या क्या चाहिए होगा? वी नीड टू थिंग्स। एक तो फील्ड fp चाहिए होगा और एक हमें रिड्यूसिबल पोलिनोमियल चाहिए होगी डिग्री n की ओवर द फील्ड f। देखिए जो प्राइम कार्डिनलिटी का फील्ड है वो तो हमें z से भी मिल जाता है। z को अगर किसी भी प्राइम नंबर से मॉड आउट करें तो उस कार्डिनलिटी का फील्ड मिल जाता है, लेकिन z से हमें प्राइम पावर वाले फील्ड नहीं मिलते, वो इस तरह से हासिल होता है। इसके लिए रिड्यूसिबल चेक करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पोलिनोमियल को रिड्यूसिबल चेक करना नहीं आएगा तो आप फील्ड कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। तो आपको दो चीजें चाहिए। अगर आपने p पावर n का फील्ड कंस्ट्रक्ट करना है, आपको एक फील्ड चाहिए विद कार्डिनलिटी p और एक इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल चाहिए जिसकी डिग्री n ओवर द फील्ड fp। फॉर एग्जांपल जो नेक्स्ट टू एग्जांपल है उनमें इसको मजीद बेहतर एक्सप्लेन किया जाएगा कि हाउ वी डील दिस, हाउ वी डू दिस। फॉर इंस्टेंस हियर इन दिस एग्जांपल वी हैव कंस्ट्रक्ट अ फील्ड विद 4 एलिमेंट्स। 4 एलिमेंट्स का फील्ड कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाए? So now let's see. We first note that 4 equals 2 power 2 और अब हमें क्या चाहिए? हमें एक फील्ड f2 चाहिए होगा और एक इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल चाहिए होगी डिग्री 2 की ओवर द फील्ड f2। ठीक हो गया। अब इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल हमें इन्वेस्टिगेट करनी पड़ेगी, ढूंढनी पड़ेगी, डिटरमिन करनी पड़ेगी, तलाश करनी पड़ेगी और हम थोड़ी सी मेहनत के बाद ये फैसला कर लेंगे, चेक कर लेंगे। अगर तो हम 1 + x² लेते हो वो तो इरेड्यूसिबल नहीं है और f2 वो रिड्यूसिबल है। तो ये एक हमें पॉलिनोमियल मिल जाती है जो इरेड्यूसिबल है और इसकी डिग्री 2 है। क्योंकि इसका रूट कोई नहीं है तो ये इरेड्यूसिबल है। तो फिर हम क्या करेंगे? इस f2x को इसके साथ मॉड आउट करेंगे, इसको हम लिखेंगे f2 थीटा और ये एक्सप्रेशन जो है वो, क्योंकि डिग्री 2 है तो एक्सप्रेशन 1 तक एक्सपेंड करेंगे और फिर थीटा जो है वो इस पोलिनोमियल का रूट होगा। ये कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस कंडीशन के बगैर हम इसके अंदर मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, एलिमेंट्स को आपस में ऐड या मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इस कंडीशन की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे ए के लिए कितनी चॉइसेस हैं? 2 चॉइसेस हैं। बी के लिए भी 2 चॉइसेस हैं। तो ये पुट करने से 0 और 1 की चॉइस पुट करने से हमें पता चला इसमें 4 एलिमेंट्स हैं। थीटा इस रिलेशन को फुलफिल करेगा। यहाँ पे नोट करते चलें क्योंकि f2 के अंदर -1 और +1 सेम होते हैं, क्योंकि 2 0 होता है। 2 = 0 मीन 1 = -1। इसकी कैरेक्टरिस्टिक 2 है। दैट मीन्स नेगेटिव चीज को पॉजिटिव भी लिख सकते हैं। जैसे 1 + थीटा तो -θ² था, लेकिन -θ² और +θ² सेम है तो इसकी जगह हम +θ² लिख लेंगे। इस तरह से ये इसमें चीज, इसी तरह थीटा इंटू 1 + थीटा जो होगा वो 1 हो जाएगा एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसका एडिशन और मल्टीप्लीकेशन का टेबल कंस्ट्रक्ट करें तो एडिशन का टेबल तो आसानी से बन जाएगा। इसमें थीटा + थीटा 0 हो जाएगा, 1 + 1 भी 0 हो जाएगा, 2 टाइम ऑफ एवरीथिंग विल बी 0। और मल्टीप्लीकेशन में जब हम करेंगे तो हमें उस रिलेशन की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल जब थीटा को आपने थीटा से मल्टीप्लाई किया तो θ² आना था, लेकिन बाय प्रीवियस रिलेशन θ² = 1 + थीटा। इस तरह से हम इस टेबल को कंप्लीट कर लेंगे। तो एलिमेंट्स को मैनिपुलेट करने के लिए, मल्टीप्लाई या ऐड करने के लिए इस रिंग के अंदर हमें इस रिलेशन की ज़रूरत पड़ती है। नाउ सी अनदर एग्जांपल। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फील्ड विद 8 एलिमेंट्स। 8 एलिमेंट्स का फील्ड कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे? वेरी सिंपल, आपको समझ आ गई होगी। 8 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 3। अब हमें क्या चाहिए? फील्ड विद 2 एलिमेंट्स एंड एन इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 ओवर द फील्ड f2। We need a field f2 and 2 an irreducible polynomial of degree 3 over the field f2. As 1 + x + x³ is irreducible polynomial of degree 3 over f2, क्योंकि इसका रूट नहीं है। f2 में 2 ही एलिमेंट हैं, 0 और 1, इसमें पुट करें तो ये 0 नहीं होती, तो इसका रूट कोई नहीं है, तो इसका लीनियर फैक्टर भी कोई नहीं है, ये इरेड्यूसिबल है। ये तरीका डिग्री 2 और 3 के लिए वैलिड है। ज़्यादा डिग्रीज के लिए हमें रूट से नहीं पता चलता, फिर हमें और भी काम करना पड़ता है, लेकिन बहरहाल ये कन्फर्म है कि ये इरेड्यूसिबल है। तो रिक्वायर्ड फील्ड फिर हमें किस तरह हासिल होगा? f2x ओवर दिस which is isomorphic to f2 थीटा। f2 थीटा में अब एक्सप्रेशन जो है वो θ² तक जाएंगे क्योंकि पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है और ए बी सी f2 में से होंगे। ए के लिए भी 2 चॉइसेस, बी के लिए भी 2 चॉइसेस, सी के लिए भी 2 चॉइसेस। 2 × 2 × 2 टोटल 8 एलिमेंट्स इस सेट में आएंगे। इस रिंग में, इस फील्ड में 8 एलिमेंट्स आएंगे। वो बारी बारी आप पुट करें, पहले ए को सबको 0 पुट करें, 0 आ जाएगा।
फिर ए को 1 पुट करें, बाकी दोनों को 0 पुट करें, 1 आ जाएगा। इस तरह से आप 8 एलिमेंट्स कंप्लीट कर लेंगे। एंड अगेन दिस रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये रिलेशन यूज होगी जहां पे भी आपको इसके एलिमेंट्स को आपस में मैनिपुलेट करना पड़े। तो ये था डियर स्टूडेंट्स, ये था इस लेक्चर में हमने ये सीखा है कि फाइनाइट फील्ड्स ऑफ प्राइम पावर किस तरह कंस्ट्रक्ट किया जाए। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इसमें हमने एक थ्योरम पढ़ा था, वो थ्योरम इन जनरल हर रिंग के लिए ट्रू है। उस थ्योरम की को यूज करके हमने जो है वो अपना दोबारा बता दूं आपको थोड़ा सा। इसमें हमने सबसे पहले ये थ्योरम पढ़ा। इस थ्योरम में ये किसी भी रिंग के लिए है, कोई भी कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी हो तो आर एक्स ओवर एफ की कार्डिनलिटी एम पावर एम होगी। यहाँ पे अगर हम आर को फील्ड ले लें और एफ को इरेड्यूसिबल ले लें तो ये भी फील्ड बन जाएगा बाय प्रीवियस लेक्चर्स थ्योरम। तो ये नेक्स्ट क्रॉलरी हमें मिल जाएगी और इस फील्ड के जो ऑर्डर होगा वो प्राइम की पावर होगा। और फिर इस इनको यूज करके हमने नेक्स्ट 2 एग्जांपल्स कंस्ट्रक्ट किए हैं, फील्ड विद 4 एलिमेंट्स एंड फील्ड विद 8 एलिमेंट्स। अब आपको चाहिए कि फर्दर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप क्या कीजिए, आपके जिम्मे में 2 काम लगाता हूँ। एक तो आप ये मैं आपको असाइनमेंट में भी दूंगा, तो आपने क्या करना है, एक फील्ड कंस्ट्रक्ट करना है विद 9 एलिमेंट्स, एक फील्ड कंस्ट्रक्ट करना है विद 16 एलिमेंट्स। तो ये आप थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कंस्ट्रक्ट करने के लिए। बाकी डिस्कशन फिर इंशाल्लाह ऑनलाइन सेशन में होगी, अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ